seeing if coming in from Bengaluru. This time a new case has come up. 2 cases in just one day. 2 cases in just one day. Another young life has been lost due to a pothole in Karnataka. This time Kolar is a place where this incident has transpired. Pushpa was her name. Pushpa was on a 2-wheeler when she came across a pothole-ridden stretch. But trying to avoid, she lost balance and fell down. A truck was behind her. That truck ran over her and she died on the spot. Taking a very short break right now. We continue getting you top updates. Much more coming up on the other side. Now, BJP hits out anger among Hindu community as Bihar minister insults Ramcharitmanas. Step into luxury, where grace blends with grandeur and design blends with innovation. As your stress is washed away and you're transported in the lap of luxury. Cure European bath lounges. Let time wait. एक आपने कॉन्सेप्ट दिया जी जनाब का. I don't ever want to claim anything which is not done by me. I only cast my mind back to what General Patinkar and General Nirbhay Sharma had done. What I did was that I took the Ji Janab. Ji Janab was not about saying Ji Janab to everyone. It was just a symbol, a name given to an operation to say, understand the Kashmiri environment, understand the culture, understand the sensitivities. संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है. Top headlines at 12:30. Republic confronts Bihar minister who insulted Ramcharitmanas. Minister says, in fact, remains defiant, justifies his remarks. Ramcharitmanas was a nafrat फैलाने वाला ग्रंथ. Was a grant that was spreading hatred. This is not a coincidence, it is a conspiracy. BJP hits out anger among Hindu community as Bihar minister insults Ramcharitmanas. After UK and Canada, hate graffiti now scribbled on the walls of Hindu temple in Australia's Melbourne. Back-to-back 3 incidents of snake, lizard and rats found in midday meal. BJP alleges funds misappropriation. Republic confronted Bihar Education Minister who insulted Ramcharitmanas by saying that it spreads hatred. Even as Republic confronted Minister on insults to Hindus, he remained defiant while justifying his statement. ये जो भी मैंने बात कही है, संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है. Massive controversy over Bihar minister's insult to Hindus. BJP as well as Hindu community lashed out at Bihar minister's insult to Ramcharitmanas. और दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के लोग बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं. उन सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा जो कि नफरत की राजनीति खुद फैलाते हैं. राम हमारे लिए आदर्श हैं. वो एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में जिन्होंने अपने सारे किरदार को सामने रखा, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है. तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना ये जानबूझ करके एक नफरत फैलाने की राजनीति है. Amid massive controversy over Bihar Education Minister's insult to Hindus, BJP MP Sushil Modi demanded Nitish government to sack the minister. वो कहते हैं कि दलित विरोधी है, तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को.
और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं, तो नीतीश जी ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उपस्थित हुए हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हुबली में। और प्रधानमंत्री का काफिला लोगों के बीच से गुजरता हुआ अपने गंतव्य स्थान की ओर। इस बीच लोग प्रधानमंत्री के कटआउट लेकर, झंडे लेकर, प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेकर उनका स्वागत करते हुए, बल्कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि लोग सड़कों पर भी खड़े हैं और इसके साथ मकानों पर भी, छतों के ऊपर, पहले मंजिल पर भी और उसके ऊपर भी लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि युवाओं की काफ़ी तादाद है, महिलाओं की काफ़ी तादाद है जो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं पूरे जोश के साथ। तो ये सीधा प्रसारण कर्नाटक के हुबली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उनका काफिला जा रहा है और लोग वहां पर, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उनका अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं लोग। और जहां पर उनका काफिला अभी नहीं पहुंचा है, वहां पर लोग प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। और जहां पर काफिला, जहां से उनका गुजर रहा है, वहां पर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी के ऊपर, प्रधानमंत्री की कार के ऊपर, और हाथ ऊपर उठाकर पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे हैं उपस्थित जन समुदाय, हाथ हिलाकर, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं। उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में दिखाई पड़ रही हैं जो वहां पर पहुंची हैं प्रधानमंत्री का झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए। लोग पूरे उत्साह में मोदी मोदी नारे का उच्चारण भी कर रहे हैं और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए हुबली पहुंचे हैं। इस बार ये आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में हो रहा है। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी तादाद में, बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और ये उन काफ़ी दूर दूर तक इकट्ठे हुए हैं, बल्कि कई किलोमीटर लंबा ये सफ़र। और उस दौरान लोगों का ये उत्साह का ये नज़ारा, जब अपने बीच प्रधानमंत्री को पाते हैं और जब उनके करीब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो एक लहर सी दौड़ जाती है लोगों के चेहरे पर, लोगों के मन में, और भीड़ जो है वो अभिवादन कर रही है हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का, अपने जननायक का, अपने प्रधानमंत्री का। इसके साथ ही बड़े बड़े कटआउट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर भी लोग आए हैं। और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर कुछ देर के लिए रुका हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर, अपनी कार से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली में, जहां पर लोगों में गजब का उत्साह, लोग तो हाथ हिलाकर अभिवादन कर ही रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी कार से उतरकर हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। और उनके जवाब के बाद लोगों में उत्साह की लहर कुछ और ज्यादा देखी जा रही है। ये उत्साह और ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि प्रधानमंत्री भी गाड़ी पर सवार हैं और गाड़ी में खड़े होकर ही प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ हिलाकर अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। लोगों के उत्साह को देखकर प्रधानमंत्री ने भी यह सोचा कि बैठे रहने के बजाय खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दिया जाए, उनके उत्साह में शामिल हुआ जाए। और ये देखिए किस तरह से लोग
फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों की बारिश, कहीं पर पीले फूल तो कहीं पर लाल फूल ये दिखाई पड़ रहे हैं जब प्रधानमंत्री के ऊपर उसकी बारिश की जा रही है। लोगों के द्वारा, उपस्थित जन समुदाय के द्वारा जो गजब के उत्साह में हैं, और बहुत सारे लोग अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री की तस्वीरें बनाते हुए अपनी मोबाइल से तस्वीरें बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और लोगों में गजब का उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों तरफ लोग भारी संख्या में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दल की छतों पर देखिए, मकानों की छतों पर भी लोग वहां पर चढ़े हुए हैं। ये मकान अभी निर्माणाधीन है, उसके बावजूद वहां पर छत पर लोग चढ़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी उनके उत्साह में पूरा साथ देते हुए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कार में बैठे रहने के बजाय खड़े होकर हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं। और वहां पर उपस्थित हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम भी, उनसे जुड़ते हैं और वहां के नज़ारे के बारे में उनसे और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आयशा, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है हुबली में, इतना उत्साह कि प्रधानमंत्री को भी बाहर निकलकर हाथ हिलाकर जवाब देना पड़ रहा है। आयशा, All right, viewers, so right now we're getting visuals coming in. The Prime Minister's mega roadshow there and a massive outreach. The stage is all set, viewers, for the launch of the National Youth Festival. The Prime Minister will inaugurate that at 4 p.m. today. We're counting down to 4 p.m. where the Prime Minister will inaugurate the National Youth Festival. But right now, before that, we're seeing a mega roadshow there in Karnataka. The stage is all set for the National Youth Festival. Elaborate preparations have been made, security arrangements have been made. And the stage is set in Hubli for the inauguration of the 5-day National Youth Festival. It's going to be a 75-minute ceremony in which the Prime Minister will inaugurate the cultural extravaganza. The railway sports ground is hosting the thousands of people there. And there will be a cultural march past, yoga performances, and also many other shows will be held at the inauguration program. Also, heavy security arrangements have been made already in and around the inauguration venue. And right now, you can see that the Prime Minister is on his way to the inauguration venue. The road from the airport to the venue where the Prime Minister's motorcade will move. So many security arrangements have been made and enthusiastic reception for the Prime Minister. Prajwal is joining us as well. Prajwal, just very shortly, we will be soon seeing the Prime Minister inaugurate the festival at 4 p.m. at the railway sports ground. What other details do we know? Now, Shivangi, looking at how the Prime Minister's roadshow is already being conducted with enthusiastic crowds, mainly youths, because he's going on to inaugurate the youth festival there in Hubli as well. And this youth festival will be held for a period of 5 days with many activities going on for the youngsters. And mainly now the focus of the state government along with the centre has been to provide jobs for the youths as well. So this is being looked at as an opportunity for the youths to go on and get jobs at this, at the particular youth festival as well. And they will also be getting a first-hand experience about emerging technologies. And not only that, they will also be given training in how to go about with vocational education as well. So these are some of the things which are there in the program as well. And to look at it in a broader perspective too, the BJP state government in Karnataka had come in under a lot of they had come in under a lot of flack because the Congress had gone on to allege that in the year 2021-2022 over 1,500 youths had gone on to commit suicide because they did not get jobs. But this is BJP's answer. This is mainly the centre's answer towards to the Congress as well, stating that right.
Also now looking at how things are going on as well. Now seems like now this particular job expo will also be opened along with the youth festival as well, and there are also there are also many developmental projects which will also be launched. Also now if you're looking at if you're looking at this massive roadshow there, you can also hear chants of PM there, and this clearly जारी है। और साथ ही एक चीज और जारी है कि लोगों के हाथ में जो मोबाइल फोन हैं, कैमरे हैं, उससे वो लगातार प्रधानमंत्री की तस्वीरें, उनके वीडियो लगातार बना रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ, उस ग्राउंड की तरफ जाते हुए जहां पर कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, उसका आगाज होना है और प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये प्रधानमंत्री का हुबली में जबरदस्त रोड शो। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, अभिवादन का जवाब देते हुए, और लोग भी गजब के उत्साह में मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पीछे के लोग आगे बढ़ करके, दौड़कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री का नजारा लेना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसके लिए खास तौर पर युवा दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। और जो उपस्थित जनसमुदाय वहां पर है, उनमें आप देखिए महिलाओं की अच्छी खासी तादाद, महिलाएं काफी संख्या में, महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां, वो भी काफी संख्या में वहां पर उपस्थित हुई हैं। और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के लोग। गजब का उत्साह लोगों में, और प्रधानमंत्री भी उनके उत्साह का जवाब देते हुए, अपना हाथ हिलाकर जवाब देते हुए। लगातार ये तस्वीरें कर्नाटक के हुबली से, जहां अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री उस जगह पर होंगे जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, और प्रधानमंत्री इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। और उसी उद्घाटन के लिए, उसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और इसी के साथ प्रधानमंत्री के काफिले का जोरदार स्वागत भी होता हुआ, और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर इस अभिवादन का जवाब देते हुए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पर और बात करने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह से गजब का उत्साह हम देख रहे हैं कर्नाटक की हुबली में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, ये लगभग वैसी ही कहानी है जो हम प्रायः देखते हैं कि प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो स्थानीय लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं। और हुबली में भी वही हो रहा है, बल्कि कई जगह पर कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, हम देख रहे हैं कि हुबली कर्नाटक में जिस तरह से सड़क पर दोनों तरफ लोग अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। और हम अक्सर इस तरह के दृश्य देखते हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला इस तरह से गुजरता है कई जगहों से। और हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शो में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर तब सड़कों के दोनों तरफ वो हुजूम दिखाई देता है। और वही उसी तरह के दृश्य हम यहाँ हुबली कर्नाटक में देख रहे हैं, जहाँ लोग उनका अभिवादन करना चाहते हैं, नजदीक से उन्हें देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हम देख रहे हैं कि हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और छतों पर जो लोग खड़े हुए हैं उनका भी हम देख रहे हैं कि अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सड़क के दोनों तरफ ये जो भीड़ का उत्साह है, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए लोग कितने उतावले हैं, कितनी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो इस तरह से रोड शो के जरिए जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से मिलते हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त छत पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सड़कों के दोनों तरफ
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तब लोगों का उत्साह एक तरह से कहे दिखाई पड़ता है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और इस तरह की तस्वीरें हम कई राज्यों में भी पहले भी देख चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत होता है, तो वो ये तस्वीरें अपने आप में बिताती है। आज इस महत्वपूर्ण दिन के मौके पर, आज जब हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है, और आप देखें कि ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं उस पर लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, उन्हें नजदीक से देखने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। लालचंद्र जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, खड़े होकर, गाड़ी पर खड़े होकर दोनों तरफ लोगों को हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही कर्नाटक में कितने लोकप्रिय रहे हैं, और ये नजारा उसी लोकप्रियता की एक वानगी। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक हो या कोई दूसरा राज्य हो देश का, जब भी हम देखते हैं कि इस तरह से रोड काफिले के दोनों तरफ सड़कों के किनारे जो भीड़ दिखाई देती है, वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए लोग कितने उतावले रहते हैं, लोग उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए कितना उत्सुक रहते हैं। आप देखिए, इस वक्त पुष्प वर्षा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और अपने हाथों में फूल लिए हुए जो यहाँ पर जनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रही है। ये प्यार दिखाता है कर्नाटक की जनता का, हुबली की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अभिवादन स्वीकार करने में। तो निश्चित तौर पर ये एक विहंगम दृश्य है, ये एक दृश्य है जो दिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री अपने लोगों से किस तरह से मुखातिब हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री किस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहा है लोगों का। लौटता हूँ आपके पास, हमसे आयशा खानम भी हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। आयशा, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो पिछले काफी देर से ये चल रहा है, कितनी दूरी है लगभग जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए? आयशा जी देखिए लालचंद, कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है, करीब 7 किलोमीटर की दूरी है एयरपोर्ट से रेलवे ग्राउंड तक। और लेकिन ये काफिला जो है धीरे चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं करना चाहते। रास्ते में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, युवक जुटे हुए हैं। कई युवकों के लिए वो मोदी सर है, और कई युवक उन्हें मोदी सर कहते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर हो सकता है ये लोग यहाँ पर इतने संख्या में नहीं जुटे होते तो काफिला तेजी से, तेज रफ्तार से आगे बढ़ता, लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री सबको एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ग्राउंड में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। कई लोगों को यही वजह थी कि लोग एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो काफिला है कुछ ही मिनट में, कुछ ही वक्त में अब रेलवे ग्राउंड पहुंचेगा, जहां पर कई युवक जो है अनोखे अंदाज में उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा युवकों के साथ सीधे संपर्क करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। ये तमाम चीजें जो है यहाँ युवकों को उनके करीब लाता है। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री हर अपने संबोधन में युवकों की जनसंख्या को देश का सामर्थ्य बताते हैं। तो ऐसे में जाहिर है उनका जो ये स्वागत हो रहा है, इससे प्रधानमंत्री एक्नॉलेज जरूर करेंगे, और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। तो आज स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है, इस मौके पर कई युवक, जाहिर है स्वामी विवेकानंद के जो बोल हैं, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, ये जो उनके जो बोल हैं, हर कोई बचपन में ये बोल सुनकर बड़ा हुआ है। तो हर एक के मन में यही चल रहा है कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे युवकों के साथ संपर्क में रहेंगे, और सीधे उनका संबोधन सुनने के लिए यहाँ पर युवक जुटे हुए हैं। तो जब प्रधानमंत्री रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी उनका स्वागत एक खास अंदाज में होगा। उन्हें हुबली के बेंगेरे गांव में जो तिरंगा बनता है, तिरंगा एक फ्रेम किया गया तिरंगा उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ही गांव है जो भारत में जो यहाँ पर ऑफिशियल फ्लैग कोड के तहत खादी का तिरंगा बनता है, और ये देश के कोने कोने में तिरंगा लहराता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का स्वागत इस तिरंगे उन्हें सौंपा जाएगा ये तिरंगा,
और इसके अलावा इलायची से बना जो है एक टर्बन उन्हें दिया जाएगा, एक पेठा उन्हें दिया जाएगा। और ये खास है क्योंकि हुबली के लोग अपनी कल्चर, अपनी जो यहाँ की संस्कृति है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंचेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, भीड़ यानी जो काफिला जो है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, तो भीड़ भी एयरपोर्ट से ये मानो कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ आगे आगे चल रही है। प्रधानमंत्री उन्हें उनको एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कैसे उनकी गाड़ी पर फूलों की वर्षा हो रही है और तमाम लोग, तमाम युवक जो है और हुबली के निवासी जो है सड़क के दोनों पार खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, होसूर सर्कल और कोर्ट सर्कल, ये विशेष जगहें हैं जो हुबली की आर्थिक विकास दर्शाती है। कर्नाटक में हुबली में जो सुप्रीम कोर्ट बेंच का गठन हुआ था, उसके बाद हुबली के लोगों को यहाँ अपने केसेस या अपने मामलों को सुलझाने में आसानी हो गई। तो ये कोर्ट सर्कल के पास जो है हजारों की संख्या में वकील भी रहेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि ये जो जनोत्सव है, युवकों के लिए जनोत्सव है और रैली ग्राउंड में कई युवक हैं जो देश के कोने कोने से, करीब 3-4 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा कॉलेजेस से और कर्नाटक की, उत्तर कर्नाटक की कई अलग अलग कॉलेजेस से युवक जो है रैली, जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, वहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अभी जो प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, रानी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल है, ये हुबली का मशहूर लैंडमार्क है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसे ट्रैफिक आइलैंड भी कहा जाता था, लेकिन अब हुबली में कई जगहों पर फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सड़कें बनी हैं। हुबली जो है कर्नाटक का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है और कित्तूर चन्नम्मा सर्कल जो है हुबली की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब रैली ग्राउंड की ओर बढ़ेंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। लालचंद, बिल्कुल, आपने जिक्र किया उत्तिष्ठ जागृत का। स्वामी विवेकानंद का ये अनमोल वचन है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी कि उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको नहीं। वही छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भी लोगों को दिखाई पड़ती है, जो उनकी लोकप्रियता की प्रमुख वजहों में से एक है आयशा, और उसी का प्रकटीकरण हम हुबली में भी देख रहे हैं इस समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ है, और हम देख रहे हैं शैलेंद्र कि सभी वर्गों के लोग, महिलाओं की संख्या की बात करें, युवाओं की संख्या की बात करें, काफी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, युवाओं में भी गजब उत्साह प्रधानमंत्री को लेकर। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद, राष्ट्रीय वो युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और आज का दिन हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए खास है। और ऐसे में आप इस रोड शो में सिर्फ युवा नहीं बल्कि हर आयु समूह के लोगों को देख रहे हैं, उनमें एक उत्साह है। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप जिक्र भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की एक खास वजह भी ये मानी जाती है कि लगातार वो सक्रिय रहते हैं, देश हित में चिंतन करते रहते हैं और तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसकी चिंता करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम तमाम रैलियों में, इस तरह के रोड शो में देखते हैं कि वंचित वर्ग से या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वहां इन जनसभाओं में खड़े नजर आते हैं, प्रफुल्लित नजर आते हैं, उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आती है जो अपने प्रधानमंत्री को नजदीक से देखकर हासिल होती है। तो निश्चित तौर पर वो हम दृश्य देखते हैं जब इस तरह के रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ जो नजारा होता है, पुष्पवर्षा होती है, वो ये दिखाता है कि किस तरह से एक जन नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग अभिवादन करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं और अगर मौका मिलता है तो
पुष्प वर्षा जिस तरह से हम देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर हम इस तरह जब रोड शो में तस्वीरें देखते हैं, सभी आयु उम्र के लोग हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लोकप्रियता उनकी वर्षों की कठिन तपस्या, मेहनत का नतीजा है, जो उन्होंने देश की जनता के हितों की चिंता करते हुए की है। जी, और जो एक सूत्रवाक्य विवेकानंद का था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उस तरह का सूत्रवाक्य दिया है शैलेंद्र, परिश्रम की पराकाष्ठा। प्राय प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में इसका जिक्र करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा, उसी का जिक्र आप कर रहे थे शैलेंद्र। निश्चित तौर पर, और परिश्रम की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सूत्रवाक्य दिया, बल्कि आप देखें कि उनके जीवन में वो दिखता भी है, जब वो बिना एक दिन छुट्टी लिए बीते कई वर्षों से लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं। लगातार हम उनके दौरे देखते हैं, कई बार कई घंटों तक हम देखते हैं कि कई कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मोदी सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाओं को अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि हम उससे प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी देखते हैं सतत कार्यक्रमों की व्यूह रचना होती है, चुनाव वाले राज्यों में भी और उन राज्यों में भी जहां चुनाव दूर है, संगठन लगातार काम करता रहता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी भी प्रेरणा लेती है, और यही वजह है कि कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी में भी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम भी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। आयशा, जिन इलाकों से इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, लग रहा है कि वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है क्या? क्योंकि बहुत तादाद में लोग वहां पर उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रेजिडेंशियल इलाके से प्रधानमंत्री गुजरे हैं, फिर जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं कमर्शियल इलाका है, और यहाँ पर जो लोग इस कमर्शियल इलाके में जो जिनके व्यापार है, जो व्यवसायी है, ये तमाम लोग जो है आज अपनी दुकानें बंद करके अपना व्यवसाय थोड़ी देर के लिए रोक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, और बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इस रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे, तो यहाँ इस ग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं युवकों के मन में एक ही बात चल रही है कि आज प्रधानमंत्री उनके लिए क्या नया गुर देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से युवकों को ये कहते रहे हैं कि चिंतन से युवा है, चेतना से युवा है, और भारत में जो आधुनिकता को स्वीकार किया है, जो इनोवेशन प्राचीनता के साथ जोड़ा गया है, ये तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री एक बहुत ही खूबसूरत बुके में पिरोकर लोगों के सामने, खासकर युवाओं के सामने पेश करते हैं, और युवा इससे काफी प्रेरित होते हैं। तो अब आज देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ के युवकों को क्या गुर देते हैं, सक्सेस का क्या मंत्र देते हैं, और यहाँ पहुंचे जो यूथ फेस्टिवल में पहुंचे जो युवक हैं, वो प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए बेहद उत्सुक है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री रैली जो संबोधन वाले ग्राउंड में पहुंचेंगे, रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे, यहाँ पर उनके स्वागत में कई सारे युवक जो है पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर कुछ युवक जो है मलकम का प्रदर्शन करेंगे, कुछ लड़कियां भी हमने देखा प्रैक्टिस कर रही थी मलकम खेल की, यानी जो प्राचीन खेल हैं, जो भारत के प्राचीन योगा प्रैक्टिसेस, इन तमाम चीजों को युवक जो है आज प्रधानमंत्री के सामने पेश करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है, कुछ ही देर में ग्राउंड पहुंच जाए, लगभग कुछ ही दूरी पर है अब ये काफिला। प्रधानमंत्री ग्राउंड के ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी लालचंद, आपने बीच में बुके का जिक्र किया, मुझे ऐसा लग रहा है आयशा कि प्रधानमंत्री के ऊपर जितने फूलों की बारिश हुई है, लगता है कि हुबली शहर के सारे फूल जो हैं वो लोगों ने खरीद लिए, और आज शायद हुबली शहर में बुके मिलना मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये न केवल हुबली बल्कि हुबली के आसपास के इलाकों से भी लोग आए हैं फूल लेकर, और उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये और कर्नाटक जो है, खासकर बैंगलोर शहर जो है,
फूलों के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, तो विशेष तरह के फूल भी लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत में वो बहुत ही पेशेंस से वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके सामने जो देश के युवा हैं, जो न्यू इंडिया की बुनियाद है, जो आगे चलकर देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए जो युवक है, उनको एक्नॉलेज किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही एक खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो युवाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि कैसे हुबली में बहुत स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। गौर करने वाली बात है लालचंद, कि कुछ समय पहले बैंगलोर में भी प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे बैंगलोर पोर्ट का उद्घाटन, पोर्ट की कुछ योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, तो वहां भी ठीक इसी तरह से हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए स्टेडियम से बाहर, ग्राउंड से बाहर जुटे हुए थे। और जब भी प्रधानमंत्री बैंगलोर भी पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह का जो है जमावड़ा होता है लोगों का, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का अब काफिला रेलवे ग्राउंड के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इस ग्राउंड के अंदर पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं आयशा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अपनी कार पर खड़े हुए हैं तब से वो लगातार खड़े होकर अभिवादन का जवाब ही दे रहे हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए उसके प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने भी उनको वैसा ही अभिवादन लौटाया है, वैसा ही अभिवादन से उनका जवाब दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हमेशा से अपनी लीडरशिप का एक सबूत पेश किया है। उसके अलावा एक लीडर होने के अलावा वो लोगों को उनकी बातें जो है लोगों को छू जाती है। वो एक आम आदमी की तरह लोगों से उनके दुख दर्द समझते हैं। एक आम शख्स की तरह वो लोगों के लिए अपनी योजनाएं जब बनाते हैं तो उसमें झलक नजर आती है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब दूसरे विदेश में भी जाते हैं तभी उनका स्वागत ठीक इसी तरह से होता है और हजारों की संख्या में इंडियन डायस्पोरा उन्हें स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आता है। तो प्रधानमंत्री की ये खासियत है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत की ये खासियत है कि वो उनके सामने खड़े लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो यही वजह है कि लोग भी उनका स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। और अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है बस आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में इस ग्राउंड में पहुंचेगा। जी, लगता है ग्राउंड के काफी करीब ये काफिला पहुंच चुका है आयशा, और 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वहां पर, और किस तरह के वहां पर उद्घाटन के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री वहां के युवाओं से संवाद भी करने वाले हैं आयशा? जी देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री आज इस यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद जो यहाँ युवक जुटे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, ये तमाम युवक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वापस लौट जाएंगे, जहाँ पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई सारे सेमिनार आयोजित किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली के इस ग्राउंड से यहाँ आए लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो वापस नई दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है इसका थीम ही विकसित युवा विकसित भारत है। यानी युवाओं की सोच बदलने के लिए अगर हम युवाओं की सोच बदलते हैं तो ये बदली हुई सोच है भारत को विकास की राह पर ला सकती है। तो खास बात ये भी रहेगी कि इस यूथ फेस्टिवल के दौरान कई विशेष फ्लैगशिप योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुद्रा लोन, इन तमाम चीजों पर और खासकर अटल इनोवेशन पर युवक जो है उस पर विचार विमर्श करेंगे। और कल भी हमने आयशा, आपको रोक कर एक बात का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। वहां चौराहे पर एक बिल्डिंग है, बल्कि कई बिल्डिंग हैं,
और उसमें हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर ही दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी संख्या में लोग वहां पर खड़े हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री का काफिला अभी गुजर रहा है। वहां पर चौराहे पर जितने भी मकान हैं सभी की बैल्कनी में, छतों पर लोगों के सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनके अभिवादन को स्वीकार करने के लिए। ये कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हमेशा से लोकप्रियता रही है आयशा, उसी का एक बानगी हम देख रहे हैं यहां पर भी, हुबली में भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस बात से यहाँ पर साबित हो जाती है कि कैसे लोग यहाँ पर उनका भव्य स्वागत में जुटे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक पहुंचते हैं, चाहे मैंगलोर हो या बैंगलोर या फिर मैसूर, हर जगह पे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग इस तरह से जुट जाते हैं। इस समय भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है। Now we can see that Prime Minister Narendra Modi will shortly be reaching the venue, and we can see that he will be shortly inaugurating the National Youth Festival. But the crescendo, you can listen to the roars, you can listen to the cheers and the flowers that are being showered, the petals that are being showered on Prime Minister Narendra Modi here, even as he's approaching. We can see many students also along the lines to, chanting, stating PM Modi there. So this is quite a huge response for the BJP in Karnataka mainly. But all said and done, the sort of response every time that the Prime Minister visits in Karnataka, one beats the other, and this so far by and large has received a tremendous response, and crowds are thronging in. Lakhs and lakhs of people are coming in, and mainly to do with the youth who want to go on, get a glimpse of Prime Minister Narendra Modi there. So all said and done now, it's just a few minutes from now where the National Youth Festival will shortly be inaugurated by the Prime Minister. But all said and done, the crowds coming in to witness the Prime Minister, huge crowds, showering petals as well. And apart from this, BJP's pro-development agenda has received a big fillip with the Prime Minister coming on, visiting Karnataka. And it is not a one-day visit, it's a two-day visit as well. And he will be launching several developmental projects, mainly to do with the twin cities in Hubli and Dharwad as well. So this is definitely a shot in the arm for the BJP ahead of the 2023 elections as well. But, the atmosphere is electrifying out there in Hubli. So the visuals themselves are a standing testimony to it. Also now looking at the number of people coming in and how the programs are going in. The stage has almost been set for the launch of the National Youth Festival, and this is the 26th edition of the National Youth Festival in Karnataka, and this is also coinciding with the birth anniversary of Swami Vivekananda, and therefore this is being called as the Viksit Yuva or the Viksit Bharat, and is organized by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports in collaboration with the Karnataka government. And we are seeing around 7,500 youth delegates from different parts of the country taking part in this youth festival, and also looking at these 7,500 delegates bringing about the integrity of the nation, the secularism from all parts of the country. 7,500 youths representing. So this shows the diversity in the unity as well. And this event will also be a green youth festival where only biodegradable materials are being used. Apart from the cutlery and napkins which are being used during the festival, all the mementos, medals, stationery provided to participants and delegates will also be reusable. So the entire youth festival is being themed around the Green Youth Festival too. So all in all, the wide variety of sports and cultural events are also being scheduled during the festival, and also youth summit and the yogathon and indigenous sports too. एक आपने कॉन्सेप्ट दिया, जी जनाब का। I don't ever want to claim anything which is not done by me. I only cast my mind back to what General Patinkar and General Nirbhay Sharma had done. What I did was that I took the Ji Janab
Ji Janab was not about saying Ji Janab to everyone. It was just a symbol, a name given to an operation to say, understand the Kashmiri environment, understand the culture, understand the sensitivities. ये कहानी 1947 में जाती है सर। एक नया मुल्क बनता है पाकिस्तान। जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, उनको ये बोला जाता है कि आप चूज करें आप कहां पे जाना चाहते हैं। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए। प्योर हिंदू सोल्जर्स कम्युनिटी जो थी पूरी, उसमें एक अकेला मुसलमान। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा, बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? जवाब जो था बहुत जबरदस्त। मैंने सोच लिया मैं उस देश में जाऊंगा, मैं उस फौज में जाऊंगा जिसमें मजहब के लिए कोई अलग जगह नहीं है। संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। Top headlines at 12:30. Republic confronts Bihar minister who insulted Ramcharitmanas. Minister says, in fact, remains defiant, justifies his remarks. Ramcharitmanas was a nafrat फैलाने वाला grant. Was a grant that was spreading hatred. This is not a coincidence. It is a conspiracy. BJP hits out anger among Hindu community as Bihar minister insults Ramcharitmanas. After UK and Canada, hate graffiti now scribbled on the walls of Hindu temple in Australia's Melbourne. Back-to-back 3 incidents of snake, lizard and rats found in midday meal. BJP alleges funds misappropriation. Overnight rains bring more trouble. Cracks now seen in more houses and even in Karnataka. ये कहानी 1947 में जाती है सर। एक नया मुल्क बनता है पाकिस्तान। जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, उनको ये बोला जाता है कि आप चूज करें आप कहां पे जाना चाहते हैं। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए। प्योर हिंदू सोल्जर्स कम्युनिटी जो थी पूरी, उसमें एक अकेला मुसलमान। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा, बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? जवाब जो था बहुत जबरदस्त। मैंने सोच लिया मैं उस देश में जाऊंगा, मैं उस फौज में जाऊंगा जिसमें मजहब के लिए कोई अलग जगह नहीं है। We are expecting that Prime Minister Narendra Modi will be reaching the program in the next 5 to 10 minutes. That is what the organizers are stating here. And to throw more light about the youth summit in Hubli now, the discussions have been garnering a lot of response on social media. It has been creating a lot of trends as well. But mainly, the Youth Summit will have discussions on topics such as shared future, youth and democracy and governance, peace building and reconciliation, future of work, industry innovation, and 21st century skills as well. And as it is a Go Green, it is a green theory. This time, a Grow Green initiative as well. They're also going on and discussing about climate change and disaster risk reduction and where they will be standing in the next 3 years to come in 2026. And there are also several exhibits which will be on display, mainly in terms of the sports category, which includes Kalaripayattu, Silambam, Kabaddi, Malakhamb, Mukna as well. But on this note, we will also quickly slip into a short break. But more news and updates on the other side. Stay tuned. Step into luxury, where grace blends with grandeur and design blends with innovation. As your stress is washed away and you're transported in the lap of luxury,
Secure European bath lounges. Let time wait. एक आपने कॉन्सेप्ट दिया जी जनाब का. I don't ever want to claim anything which is not done by me. I only cast my mind back to what General Patinkar and General Nirbhay Sharma had done. What I did was that I took the Ji Janab. Ji Janab was not about saying Ji Janab to everyone. It was just a symbol, a name given to an operation to say, understand the Kashmiri environment, understand the culture, understand the sensitivities. संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है. Top headlines at 12:30. Republic confronts Bihar minister who insulted Ramcharitmanas. Minister says, in fact, remains defiant, justifies his remarks. Ramcharitmanas was a nafrat फैलाने वाला ग्रंथ. Was a grant that was spreading hatred. This is not a coincidence, it is a conspiracy. BJP hits out anger among Hindu community as Bihar minister insults Ramcharitmanas. After UK and Canada, hate graffiti now scribbled on the walls of Hindu temple in Australia's Melbourne. Back-to-back 3 incidents of snake, lizard and rats found in midday meal. BJP alleges funds misappropriation. Overnight trains bring more trouble. Cracks now seen in more houses and even in Karnataka. ये कहानी 1947 में जाती है सर. एक नया मुल्क बनता है पाकिस्तान. जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, उनको ये बोला जाता है कि आप चूज करें आप कहां पे जाना चाहते हैं. मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए. 100 साल मना रहा होगा आजादी का, तो उस वक्त का जो विकसित भारत होगा उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसमें युवाओं की, आज के युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, इन सब बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री खास तौर पर कर सकते हैं. शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जब हम 2047 की बात करते हैं, जब हम 100 वर्ष आजादी के मना रहे होंगे, तब का भारत कैसा होगा, तब का विकसित भारत कैसा होगा, और उसमें युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसका अक्सर जिक्र होता रहता है. तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि विकसित भारत की कल्पना युवाओं के बिना नहीं की जा सकती, उनके योगदान के बिना नहीं की जा सकती. और यही वजह है कि जब जब 2047 के भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब कहते हैं कि 2047 का भारत कैसा हो, युवाओं की भूमिका की खास तौर पर जिक्र की जाती है. जी बिल्कुल, इसका खास तौर पर जिक्र होगा. और जैसा हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो ऊंची बिल्डिंग पर लोग हैं, ऊंची छतों पर, ऊंची मंजिल पर जो लोग हैं, उनकी तरफ भी कई बार प्रधानमंत्री अपने हाथ का अभिवादन कर रहे हैं, अपने हाथ से अभिवादन का जवाब दे रहे हैं लोगों का. और इस बीच So we are looking at these live images on our screens right now, coming in from Hubli in Karnataka. The Prime Minister is all set to inaugurate a 5-day National Youth Festival. Just look at the kind of turnout you see on your screens. For the last at least 40 minutes or so, remember, the Prime Minister has been out there participating in that huge roadshow. The event is even bigger because this, remember, is a youth festival. The idea here is also to pay tributes to Swami Vivekananda. And all this, let's not forget, happening very, very close to the big Karnataka elections. But the Prime Minister there going all out with the youth connect, the youth that he again and again has reiterated is going to be the real power of the new India. Now, the Prime Minister will be inaugurating the National Youth Festival. This is the occasion also of the birth anniversary of Swami Vivekananda. This is the 26th edition of this festival that's going to be held at Hubli, Dharwad, organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports in collaboration with the government of Karnataka.
Our colleague Prajwal also is with us on the phone line, even as we stay live with these images. You know, Prajwal, about 30,000 students are attending this festival. You have a number of delegates and events that is spread around for the next 5 days. But if these images are anything to go by, this really tells you the ground connect, and not just the youth connect, I'm saying, Prajwal, but the ground connect that the Prime Minister enjoys almost in every constituency that he is, every state that he visits. So now, looking at how the youth festival is going on to honor Swami Vivekananda in Karnataka, the 26th edition there, and we are seeing Prime Minister Narendra Modi waving to the crowds, and we get to understand that the number is over 40,000 now. The number has exceeded over 40,000 now, and all the people who have come in there. It is not only the youths who have come in there. It is also the residents of Hubli who have come out in large numbers to get a glimpse of Prime Minister Modi, wave at him as well, and one glimpse as well. You can also see flower petals are being showered, because this particular rally of Prime Minister Narendra Modi, the cavalcade, it is also passing through some of the prominent streets of Hubli, but these are also some of the oldest streets in Hubli, which has a lot of history to it. And also, above these commercial buildings, there are also residential buildings too. So we are also able to see, small children along with their parents who have come out to wave at the Prime Minister too. But all said and done, it's quite a massive roadshow out here because of the fact that it has been over 40-45 minutes. We had expected that the Prime Minister will reach shortly, but then looking at the response of the people, looking at how they are going on, initially it started off very swiftly. PM Prime Minister Modi's convoy started off very swiftly, but now it has slowed down, and the Prime Minister himself is out there waving at the people, and nothing more than this is a witness out there. It's a testimony out there to the fan base that Prime Minister Modi has in the state of Karnataka. And now shifting our focus, shifting our focus to the themes that we were speaking about, which have been placed as sports exhibits at the 26th Youth Festival, the National Youth Festival, mainly sports. Even if you're looking at it, we earlier heard in the morning about Prime Minister Narendra Modi speaking about the South-centric as well. But looking at this, it definitely seems so, because the sports categories include Kalaripayattu, Silambam, Kabaddi, Mallakamba, Mukna, Thanta and Gatka, and most of these are martial art forms originating from different parts of the country as well. So this is something which is being seen in a large way, and the Youth Summit is also having topics of discussion, mainly in terms of the youth in the democracy and governance, and how the participation of the youths will better the prospects of the country, peace building and reconciliation, and the future of work industry and the innovation technology with it for the 21st century. We are getting this quick breaking update, details of which are flashing on our screens now. There has been a security breach at the Prime Minister's roadshow. We are learning it was a little boy, I think, who came too close to the entire convoy. Prajwal, do we have any more details of what happened? Was it a boy? Was it a man? What do we know about it? Even we are getting these quick updates now. Initial reports stated that it was a child, but the latest updates are pointing out that it was a man who came and who breached the security as well. But all is well as of now is what we get to understand, because he's taken in by the security at this point of time. So you can see this man who just crossed the barricade. He jumped from top of the barricade. You're seeing the traffic police there on our screens there. They're trying to control him, but he came in immediately. So a woman constable, police personnel along with the traffic personnel pulled him immediately. And you can also see the SPG coming in quickly. Creating a barricade, creating a human barricade around it, and he was immediately being sent back. So this is some sort of breach
security breach that we are seeing at Prime Minister Narendra Modi's roadshow in Hubli. These incidents. He might even have been a fan or a follower of Prime Minister Modi, but we are still picking up details as to who he was and how he managed to get. But you can look at that barricade right there, where he toppled the barricade. He jumped from atop it, and then the police personnel immediately came in, even before he could reach through the inner cordon of the SPG there. Prajwal, we are just playing out those images again on our screens. Do we have any more details about who this man is? Because, we just see that entire moment there in circle, that man with that saffron shirt for a moment actually just comes very, very close to the convoy until he's pushed behind by the local cops and the SPG there. Now, who is he and from where did he come? Because, as far as I can see, there is a proper barricade. There are, those grills keeping the convoy and the roadshow apart. I think we also have our colleague Abhishek with us. So, Abhishek, first up, any more details on this particular man that we see on our screens? No, not yet. In fact, the only details we have is coming in from the pictures, Deepti, and the pictures absolutely clearly suggesting a security breach, because irrespective of the fact that this might be a supporter, that this might be a BJP cadre, that these might be people who are fans of Prime Minister, and he's a popular leader, and that everyone would want to get close to the Prime Minister, as close to the Prime Minister, as close to the leader as they would, as possibly they can. But then there is a reason why in the roadshow that barricade is kept, and which is because that's the security drill, that's the protocol, that the SPG ring around the Prime Minister cannot be breached. And in the pictures it can be seen that that did happen. The SPG commando with absolute alacrity stopped the person, snatched the garland from his hand, and the Prime Minister in fact takes the garland and gives it to another SPG commando. But what is important is that as per the strict guidelines of the Blue Book of the SPG, this really constitutes a security breach, Deepti, and I believe there has to be an analysis. I believe there would be some kind of dissection of this particular episode in these pictures that we see at the level of SPG review. I believe there are systems to take care of and analyze these kind of incidents. There is an ASL that happens before, and when these barricades were kept, how did this man jump? Was there some gap between the barricades, two barricades from which this man came in? Did he jump? And if he jumped, what was the outer ring of security doing? How come he jumped and nobody noticed, and he could walk that distance or run that distance of about 5 meters from the barricade to the Prime Minister? This is clearly, irrespective of the intent, a classic security breach picture, and I believe an analysis would be done by the SPG on that. And it does come very, very close. If you just look at the instance, within seconds you see this man literally, rushing towards the convoy. He's so very close to the Prime Minister, Abhishek. Now, first up, tell me, because, in the pictures, we aren't very clear how old this man/boy is. Any more details of his identity yet? We are trying to ascertain, Deepti, but this seems a supporter. This seems someone who's been there in the crowd for a while, because if he jumped, it took a while for the local police and the security ring, the outer security ring, to really react. Which means he must have been there for a while. He was in the crowd. He seems like a case of a supporter, a fan of the Prime Minister. And remember, we have this is only with this Prime Minister that you see these kind of roadshows where he's directly connecting with the masses, the popular leader that he is. I remember, for example, a similar instance happened in Jamnagar, if I'm correct, during the Gujarat campaign. A Prime Minister, in fact, got down from the car and he saw some supporter, and the supporter was carrying a poster of Prime Minister's mother, and he wanted a signature. All that happened. But, despite the intent, even that was seen as a security
breach as per the strict blue book of the SPG, and an analysis of that event was done. So obviously in this case, the man really rushes and breaks that security cordon and the barricade and then reaches the Prime Minister. So obviously even this would call for a very strict review by the SPG and whatever instructions they need to pass for the local police to make sure that next time that outer ring is not breached in the manner as can be seen in the pictures. And because you just reiterated what happened earlier in Jamnagar, you know, Abhishek, this time this boy/man is carrying a garland. He was trying to garland the Prime Minister, and, you know, clearly he's pulled out by the SPG, the local police. And, you know, what otherwise is the protocol? Because, you know, as far as we understand, there is a secured perimeter beyond which absolutely nobody, Abhishek, is allowed. Well, if you look at it from a very strict security angle, Deepthi, this garland could be anything. You know, seemingly it's a garland, but it could be anything. You know, and it's an unscreened material.